Unit 9 Structural Organization of Flower. Now, the discussion of summary of this chapter is the very first point. A flower is structure bearing a reproductive part in plant and evolved after structural modification in the shoot apex. A flower generally bears four whole, namely sepals, petals, stamen, and carpel, which forms the calyx, corolla, androecium, and gynoecium. A flower beginning all the four whole and appendages is called the complete flower. A histological zonation of the vegetative apex help in the development of the different parts of the flower. Whole apex get transformed to enter a phase of development, and this cell present in the different zones of the reproductive axis. So high mitotic activity and result in the formation of different parts of the flower. Cell located in the tunica and the mental region undergo division following the differentiation to form different parts of the flower. The basic organization of the flower is explained by ABC model, and three classes genes regulate the development of the floral organ angiosperm. When interactions between these genes induces the development of the floral organ. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बियर करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्लांट में, जो कि इवॉल्व करता है आफ्टर द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन द सूट एपेक्स. मतलब उसके सूट एपेक्स का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जब हो जाएगी, उसका सूट एपेक्स का जब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में इवॉल्व होता है कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि एक फ्लावर बियर कर रहा होता है. अ फ्लावर जनरली बियर्स अ होल, फोर होल. फ्लावर में जनरली फोर होल होते हैं जिसका नाम होता है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल. सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल. उसमें से सेपल से क्या फॉर्म हो जाएगा बाद में लेटर ऑन क्या फॉर्म हो जाएगा, काइलिक्स. पेटल बाद में विच फॉर्म्स द काइलिक्स, क्लोरा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. इस तरह का इस इनिशियल पार्ट जो उसका होता है वो होता है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, और बाद में कुछ पार्ट्स उसके फॉर्म होते हैं वो होता है काइलिक्स, क्लोरा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अ फ्लावर बियरिंग ऑल द फोर होल और अपेंडेजेस इज कॉल्ड द कंप्लीट फ्लावर. और उसके बाद में फोर होल, अपेंडेजेस, सारी चीज़ें कंप्लीटली मिला करके एक कंप्लीट फ्लावर का फॉर्मेशन करता है. कंप्लीट फ्लावर कंसिडर होता है. द हिस्टोलॉजिकल जनरेशन ऑफ वेजिटेटिव एपेक्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. और वेजिटेटिव एपेक्स की हिस्टोलॉजिकल जोनेशन ही हेल्प करता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप हो सके उसकी डेवलपमेंट में. होल एपेक्स के ट्रांसफर द इंटायर न्यू फेज ऑफ द डेवलपमेंट सेल प्रेजेंट इन द डिफरेंट जोन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एक्सेस apex so high mitotic activity and result in the formation of different parts of the flower. Cell located in the tunica and mental region undergo division followed by the differentiation and form different parts of the plant. में याद रखना है कि यहाँ पे जो सेल डिवाइड करेगा टुनिका में और मेंटल रीजन में, अब वो डिवीजन तो करेगा लेकिन किससे करेगा, डिफरेंशिएशन से करेगा. डिफरेंशिएशन से डिवीजन कर रहा होगा, डिफरेंशिएशन से वो डिवीजन करेगा. The basic organization of the flower is explained by the ABC model, and three classes of genes regulate the development of the floral organs angiosperm. The interaction between these genes induces the development of the floral organ. अब इसी के इंट्रैक्शन से क्या होता है, फ्लोरल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है. फ्लोरल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट इसी की वजह से होता है. Anther is the structure that produces the pollen. A mature anther is a four-lobed structure having four pollen sac. A mature anther wall is made of different layers. Outer epidermis is followed by endothecium, middle layer, and tapetum, and the endothecium help in digestion of the anther, while the tapetum act as a nurturing tissue, as a nutritive tissue that supports the developing pollen. तो यहाँ पे क्या है, एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पॉलन को प्रोड्यूस करता है. एक मैच्योर एंथर में फोर लोब स्ट्रक्चर होगा जिसमें पॉलन सैक कंटेनिंग होगा. मैच्योर एंथर में वेल डेवलप्ड लेयर्स होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे जिसमें आउटर वाला जो लेयर है उसको एंडोथेशियम बोलेंगे, फिर मिडिल लेयर एंड देन टेपेटम. एंडोथेशियम का फंक्शन में याद रखना है कि डाइजेशन ऑफ एंथर में हेल्प करता है. टेपेटम का फंक्शन है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे, वो न्यूट्रिटिव टिश्यूज की तरह एक्ट करता है जो कि डेवलपिंग पॉलन को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, यानी जो कि डेवलपिंग पॉलन को सपोर्ट करता है पॉलन को डेवलप करने में बाय प्रोवाइडिंग इट न्यूट्रिशन. A group of archosporal cell present in the anther lobe undergoes a periclinical division to form a primary parietal cell PPC and primary sporogenous cell PSC. The PPCs undergo repeated periclinical and anticlinical division to produce 2 to 5 layers of the anther wall, and the primary sporogenous cell undergo mitotic division to form 4 sporangiosperm mother cell, or the microsporangiate, which further undergo division to produce 4 microspore. And this process of development of a microspore from microspore mother cell is referred to as a microsporogenesis. Microsporogenesis का मतलब है यहाँ पर कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करना माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एमएमसी से, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर्स डेवलप करता है मेल गैमेटोफाइट
or microgametophyte. Each male gametophyte contains 3 cells located within the cell wall. अब इसमें हर एक मेल गैमेट क्या कंटेन करेगा, 3 सेल कंटेन करेगा जो कि विद इन द सेल वॉल लोकेटेड रहेगा. माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली टू प्रोड्यूस अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल लेंथ सेप्ट जनरेटिव सेल. अब जो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है. कैसे डिवाइड करता है, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है. एक लार्ज वेजिटेटिव सेल बनाता है, एक छोटा सा जनरेटिव सेल बनाता है. जो वेजिटेटिव सेल होता है वो जनरली ज़्यादा एरिया कंटेन करता है उस सेल का. which and generative cell will subsequently divide further to form 2 sperm cells microgametes. उसके बाद में वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रह गया. जनरेटिव सेल फिर फर्दर डिवाइड करता है एंड डिवाइड करने के बाद में 2 गैमेट्स बनाते हैं, 2 स्पर्म सेल्स बनाते हैं जिनको हम माइक्रोगैमेट्स भी बोलते हैं. Some plants show the inability to produce or to release a functional pollen. This result in failure of the formation of the development of functional stamen and microspore or gametes. Some plants show inability to produce or to release functional pollen. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फंक्शनल पॉलन रिलीज नहीं कर पाते, और दैट इज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट फंक्शनल स्टेमन, माइक्रोस्पोर और गैमेट्स की वजह से इनमें जो है फंक्शनल स्टेमन, माइक्रोस्पोर, गैमेट्स इसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती. मेल स्टेरिलिटी इज ऑल्सो डिजिग्नेटेड एज अ न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी. अब जो मेल स्टेरिलिटी है यहाँ पर जहाँ पर वो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे फंक्शनल पॉलन, तो वो उसको हम न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी भी बोल सकते हैं, NMS भी बोल सकते हैं, जेनेटिक और मेंडेलियन स्टेरिलिटी भी बोलते हैं. विच इज गवर्न बाय वन और मोर न्यूक्लियर जीन और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS, in which the sterility results from the combined action of nuclear gene or the genic or structural changes in the cytoplasmic organelle genome. And non-genetic male sterility result from the application of specific chemicals, gametocides or the chemical hybridizing agent CHA. याद रखना है कि जो chemical hybridizing agent है ये non-genetic male sterility का मतलब non-genetic male sterility का कहीं ना कहीं कॉज है, गैमेटोसाइड्स का कॉज है, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट CHA इसका कॉज है. ये सब चीज़ें इसके कॉजेज हैं. ओवरी इज द Ovary is the reproductive structure in the flower that bears the ovule, which bears the female gametophyte, and it has a cylindrical structure called style that terminates into stigma. अब ओवरी एक reproductive structure है जिसमें ओव्यूल होगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को बियर करेगी. एक cylindrical structure style, इनमें एक cylindrical structure style होता है. स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पॉलन लैंड करेगा, फिर एक cylindrical structure style एंड देन ओवरी. सो वहाँ पर वो बियर करेंगी ओव्यूल्स. ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल या तो मेगास्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर दैट डिवाइड्स इनटू सीड्स. अब ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम ही क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिवाइड करेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप करेगा सीड में. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर मास ऑफ टिश्यू नोन एज द न्यूसेलस एनक्लोज्ड बाय 1 or 2 इंटीग्यूमेंट. अब ये ऐसा ही सेंटर मास ऑफ टिश्यू को कंसिस्ट करता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, और ये न्यूसेलस एनक्लोज्ड होता है 2 या 1 इंटीग्यूमेंट के थ्रू. द रीजन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम वेयर द पोलन tube enters the ovule is the micropylar pole or the opposite end where the function stuck through which ovule is attached to the placenta and present is called the chalizial pole. अब यही बोला है कि इसमें 2 पोल होते हैं, एक माइक्रोपाइलर पोल होता है, दूसरा चलाइजल पोल होता है. जहाँ पर हमारा पोलन ट्यूब एंटर कर रहा होगा वो माइक्रोपाइलर पोल होगा, जहाँ पर सिनेर्जिड्स होंगे, फिलिपम एप्रेटिस होंगे, और फिर जहाँ से वो जो एंड करेगा मतलब फिनिकल्स सो स्टक थ्रू दी ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, वो होगा आपका चलाइजल एंड. जस्ट उसके अपोजिट ऑफ द माइक्रोपोइलर एंड पे वो होता है. Now ovule undergo the specific degree of curvature during the development and therefore the position of the micropyle with respect to the funicle become different. On the basis of this, the ovule is classified into different types like the anatropous, orthotropous, climotropous, hemianatropous, amphitropous और the carcinotropous. तो बोल रही ओव्यूल जो है स्पेसिफिक डिग्री ऑफ कर्वेचर रखता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट. उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसकी डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है वो वेरी करता है, वो बदलता है. therefore a position of the micropyle with respect to the funicle. इस तरह से फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल का जो पोजीशन है वो पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, वो पोजीशन वेरी कर सकता है. तो बेस्ड अपॉन इट्स पोजीशन कि कैसे वो वेरी कर रहा है, कैसे वो लाई कर रहा है,
अगेन द ओव्यूल उसका क्लासिफाइड हुआ है डिफरेंट टाइप्स में, एंड वो टाइप्स हैं एनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैमिलोट्रोपस, हेमी एनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड कार्किनोट्रोपस. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर which subsequently develops into a female gametophyte or the embryo sac is called the megasporogenesis. अब क्या बोला, the process of development of the megaspore which subsequently develops into a female gametophyte or the embryo sac is called megasporogenesis. megasporogenesis डेफिनेशन बोल दिया है कि अगर कोई मेगास्पोर डेवलप हो रही है और या तो कोई फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो रही है या एम्ब्रियो के फॉर्मेट में डेवलप हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. द मैच्योर एम्ब्रियो sac is 8-cell structure having the 3-celled egg apparatus, 3 antipole nuclear cell which 2 polar nuclear fused polar nuclear as a secondary nucleus. कुछ भी नहीं है बोला है. मैच्योर एम्ब्रियो sac में क्या होता है, इस कंडीशन को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं 7-cell 8 nucleate स्टेज, जहाँ पर हमें 3 egg apparatus मिलेंगे, उसके बाद में 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे, सिनर्जिड्स मिलेंगे, सिनर्जिड्स मिलेंगे, सेंटर सेल मिलेगा. तो सेंटर सेल में सेल तो एक ही कंसिडर होता है बट न्यूक्लियर उसमें 2 होते हैं, और जो उसके चलाइजल एंड में है 3 एंटीपोडल्स होते हैं जिनमें 3 न्यूक्लियर होता है. और जो माइक्रोपोलर वाला रीजन है उस माइक्रोपाइलर वाले रीजन्स में लेट मी डिस्कस. इस तरह से वो होता है, इस तरह से पूरा होता है एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज. क्यों हम लोग बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज, क्योंकि ये जो बीच में एक सेंटर सेल कंसिडर होता है उसी में 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं. इधर चलाइजल एंड में 3 एंटीपोडल्स होते हैं, और इधर माइक्रोपाइलर एंड में होते हैं 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल. तो इसमें 3 न्यूक्लियाई, इसमें 3 न्यूक्लियाई, बीच में 2 न्यूक्लियाई, हो गया 8 न्यूक्लियाई. और सेल 7, इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जहाँ पर ये जो है ये बाद में डिजेनरेट कर जाएंगे, ये जो है ये भी बाद में डिजेनरेट कर जाएंगे. ये जो एग सेल है ये जाइगोट बना देगा एंड देन एम्ब्रियो, और ये जो है ये बना देगा क्या, इंडोस्पर्म क्यों बनाएगा, ताकि वो डेवलपिंग जाइगोट को और एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके. सो ये यहाँ बताया गया है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक इस तरह से डिफरेंशिएटेड है इनटू द 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज. Embryo sac development has been classified into 3 layers: monosporic, bisporic, tetrasporic, depending upon the number of the megaspore nuclei involved in the formation of a gametophyte. तो embryo sac development किस में classified हुआ है, 3 टाइप्स में classified हुआ है. सबसे पहला है monosporic, दूसरा है bisporic, फिर है tetrasporic, depending upon the number of megaspore nuclei involved in the formation of the gametophyte. अब ये embryo sac development classified हुआ है 3 टाइप्स में. सबसे पहला monosporic, दूसरा है bisporic, फिर है tetrasporic, depending upon the number of megaspore nuclei involved in the formation of the gametophyte. मतलब है कि जितना नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई फॉर्म होगा उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया इनटू मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक. Now we are moving toward the discussion of the terminal questions. Okay, so very first question is differentiate between the complete and the incomplete flower, then gamocephalous and polycephalous flower, then monodelphous and polydelphous, and stamen, secretory and amoeboid, tapetum, exine and entine. So one by one we will discuss the question. We will discuss the question. The very first question is complete and incomplete flower. So complete flower, and a flower that will having all the 4 holes, namely calyx, corolla, androecium and gynoecium, is referred to as a complete flower, while that lacking any of the 4 holes is incomplete flower. देखो एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, एक फ्लावर में जो पार्ट्स होने चाहिए वो है होल. All the 4 holes consist of a complete flower and the whole is named as calyx, corolla, androecium, gynoecium. calyx, corolla, androecium, gynoecium. तो जिस भी फ्लावर में ये चारों होल प्रेजेंट होंगे वो होगा कंप्लीट फ्लावर, क्योंकि उसमें वो चारों होल प्रेजेंट है. काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों होल उसमें प्रेजेंट है, हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर. और जिसमें भी उसमें से एक भी होल मिसिंग रहेगा उसको ही बोलेंगे हम इनकम्प्लीट फ्लावर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज गेमोसेफेलस एंड पॉलीसेफेलस फ्लावर. गेमोसेफेलस फ्लावर और पॉलीसेफेलस फ्लावर. तो गेमोसेफेलस
and polycephalus. The flower in which the sepals are fused are called gamocephalus, and the flower in which the sepals are free are polycephalus. तो जो फ्लावर में जो सेपल्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होंगे, फ्यूज्ड होंगे, उसको हम बोलेंगे गैमोसेफेलस. गैमोसेफेलस जहां पर होगा फ्यूज्ड. सेपल्स फ्यूज्ड मतलब गैमोसेफेलस, सेपल्स फ्री मतलब पॉलीसेफेलस. मतलब अगर वो फ्री है, सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेफेलस, अगर सेपल्स फ्यूज्ड है तो गैमोसेफेलस, जब सेपल्स फ्री है तो पॉलीसेफेलस. मोनोडेल्फस एंड पॉलीडेल्फस स्टेमन. ओके, तो मोनोडेल्फस स्टेमन क्या है? व्हेन स्टेमन आर फ्यूज्ड टू फॉर्म वन ग्रुप, द कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोडेल्फस. Example is hibiscus. Stamen fuse laterally to form staminal tube, and when the stamen are fused to form several groups, the condition is polydelphous. देखो पॉली का मतलब ही है बहुत, राइट? पॉली का मतलब ही है बहुत, मोनो का मतलब है सिंगल. तो जब भी स्टेमन फ्यूज करें एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए, वन ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, तब उसको हम बोलते हैं कंडीशन को मोनोडेल्फस. एग्जांपल इज हिबिस्कस. और जब स्टेमन फ्यूज करे लिटरली बहुत सारे ग्रुप्स के फॉर्मेशन के लिए, सेवरल ग्रुप्स फॉर्मेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस स्टेमन. मतलब जब जो स्टेमन है वो स्टेमन फ्यूज करे एक ग्रुप फॉर्मेशन के लिए तो मोनोडेल्फस, एग्जांपल हिबिस्कस. और जब स्टेमन फ्यूज करे बहुत सारे ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए, सेवरल ग्रुप्स फॉर्म करे तो पॉलीडेल्फस स्टेमन. और उसका एग्जांपल पॉलीडेल्फस, एग्जांपल ये पॉलीडेल्फस स्टेमन होगा जब बहुत सारा ग्रुप का फॉर्मेशन वो कर रहा होगा. और मोनोडेल्फस का एग्जांपल हिबिस्कस. फिर फोर्थ क्वेश्चन है सेक्रेटरी एंड एमियोबॉइड टेपिटम. सेक्रेटरी एंड एमियोबॉइड टेपिटम में एमियोबॉइड टेपिटम जो है इन्वेसिव या पेरिप्लाज्मोडियल होता है. मतलब इनर लिंजिशियल एंड रेडियल वॉल ब्रेकडाउन, प्रोटोप्लास्ट enlarge and their fusion result in the plasmodium. Amoeboid tapetum forms the periplasmodium. The amoeboid tapetum is found commonly in the monocotyledons. The secretory or the glandular, parietal or cellular type of tapetum remains intact throughout the microspore development and provides nutrition to the developing microspore, and it is commonly found in the dicotyledon, and this type of tapetum degenerates in situ or later stage is microsporic development. तो यहाँ पे जनरली क्या बोला है इसमें, सेक्रेटरी एमोबॉइड टेपिटम में बोला है सेक्रेटरी एमोबॉइड टेपिटम जो होता है इन्वेसिव पेरिप्लाज्मोडियम इनर टेंजिशियल रेडियल वॉल ब्रेकडाउन हो रहा होता है यहाँ पे, और ये प्रोटोप्लास्ट इनलार्ज करता है और इसके फ्यूजन से ही प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है. और एमोबॉइड टेपिटम जो होता है, एमोबॉइड टेपिटम जो होगा वो एमोबॉइड टेपिटम पेरिप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा. एमोबॉइड टेपिटम जो है मोनोकोटिलेडन में पाया जाता है. और सेक्रेटरी का काम क्या है? सेक्रेटरी को ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, पैरेंटल सेलुलर भी बोलते हैं. और यहाँ पे टेपिटम इंटैक्ट रहता है पूरे माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट में और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को. कॉमनली ये डाइकोटिलेडन में पाया जाता है. दिस टाइप ऑफ टेपिटम डिजेनरेट्स इन सिटू एट लेटर स्टेज ऑफ द माइक्रोस्पोरिक डेवलपमेंट. सिंपली है कि सेक्रेटरी का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और ये डाइकोटिलेडन में पाया जाता है. और जो अमीबॉइडल है वो करता है, वो मोनोकॉट में पाया जाता है, और वो किसी भी नरिशमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते. इट डजंट टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ नरिशमेंट. एक्साइन या इंटाइन. एक्साइन या इंटाइन. So inner spectrocellulosic layer of the pollen grain is called an intine, which get degraded during the acetolysis. The intine is also differentiated into two layers: the outer peptic polysaccharides layer called the exantine, and the inner cellulosic layer called the angentine, respectively. The outer layer of the pollen wall is called the exine, which is resistant to the acetylysis and the physical and the chemical degradation. Exine is composed of a spore pollen, which is a highly resistant material derived from the carotenoid. After the polymerization, exine is differentiated into two layers: the outer sculptured layer, the exine, and the inner null sculptured layer, exine. So exine इंटर डेफिनेटली क्लियर है. आउटर एंड एक्सटर्नल लेयर की बात है.
एंड बस वही है यहाँ पे कि पेक्टोस इनर जो है पेक्टोसेलुलर लेयर का बना होता है एंड इसी वजह से इसको एंटाइन बोलते हैं। इसका काम है कि डिग्रेडेड ड्यूरिंग द एसिडोलाइसिस में डिग्रेड हो जाना। इंटाइन डिफ्रेंशिएट होते हैं दो लेयर्स में, उसमें आउटर पेप्टिक पॉलीसेकेराइड्स को हम लोग एक्सेंटाइन बोलते हैं और इनर सेलुलोसिक लेयर को एंडेंटाइन बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। आउटर लेयर ऑफ द पॉलन को हम लोग एक्साइन बोलते हैं। तो इस तरह से उसका दो पार्ट्स का क्लासिफिकेशन है, एक्सेंटाइन एंड एंडेंटाइन। और फिर जो एक्साइन है वो तो आउटर लेयर ही है, और वो जैसे इनर वाला एसिटोलाइसिस में डिग्रेड हो रहा था, तो एक्साइन जो है काफ़ी टफ होता है, तो ये एसिटोलाइसिस में डिग्रेड नहीं हो जाता है, ये रेसिस्ट होता है फिजिकल, मतलब ये रेसिस्टेंट कैपेसिटी रखता है, तो इसमें कुछ हार्म नहीं होता है। एक्साइन कंपोज करता है स्पोरोपोलिनिन जो कि हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है, जो डिराइव हुआ है कैरोटिनॉइड और पॉलीमराइजेशन से। एक्साइन डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स, आउटर स्कल्पचर लेयर एंड द एक्साइन, द इनर नॉन स्कल्पचर लेयर एंड एक्साइन। सो डेफिनेटली इंटर्न एक्साइन का पाथ के बारे में बताया गया है, और कौन डिग्रेड होता है कौन डिग्रेड नहीं होता, कौन किससे बना हुआ है। Now moving toward the next question, what is the most active layer of the anther wall and why? Tapetum is the most active layer of the anther wall, and it is synthesized certain substances such as the fibroglandular protein and carotenoid containing lipid droplets which get released in the anther locule during the maturation of the pollen grain। तो बोल रहा है कि tapetum most active layer होता है anther wall, क्योंकि ये synthesize करता है certain substance के थ्रू synthesize होता है, and that substances are fibroglandular protein, carotenoid containing lipid droplets, carotenoid containing lipid droplets, and fibroglandular proteins, so fibroglandular proteins and carotenoid containing lipid droplets which get released in the anther locule during the maturations of the pollen grain।